براہ راست یہ چلیں گے آپ کو اسلام آباد میں فضل الرحمان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بر وقت کہہ دیا تھا کہ یہ آئیڈیل باتیں، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، یہ کسی ایجنڈے کے اوپر آ رہا ہے، اس کو تیار کیا جا رہا ہے، لیکن لوگوں نے امیدیں وابستہ کی۔ کیا اپنی وہ صلاحیتیں جو آج وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے استعمال کرنے کی باتیں کر رہا ہے، کیا اپنے ان نوجوانوں کے لیے، اس قوم کے لیے، بے گھر لوگوں کے لیے، ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے، لوگوں کو روزگار دینے کے لیے، کیا اس کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکے؟ صلاحیتوں سے عاری۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ ایسے لوگ کہ جن کے اندر نہ علم ہوگا، جن کے اندر نہ عقل ہوگی، جن کی جو گھٹیا قسم کے لوگ ہوں گے، وہ عوام کی بات کر رہے ہوں گے۔ آج اس عمران خان کی صورت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو حقیقت دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت آج یہ بات کرتا ہے آج کہ یہ تو امریکہ میرے خلاف کر رہا ہے۔ جب تمہیں ٹرمپ نے دعوت ہی نہیں دی تھی، اپنے طور پر تم وہاں پر گئے اور تمہیں انہوں نے ملاقات بخشی صرف، تو آپ نے واپس آ کر کہا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ جیسے میں ایک دوسرا ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں۔ ٹرمپ کے ایک ملاقات پر اس قسم کی خوشیاں منانا اور جشن منانا، یہ اس کے ایجنٹ ہونے کی دلیل ہے۔ آپ یہ باتیں آج نہ کریں۔ اینٹی امریکنزم، جمہوری راستے کے ساتھ دلیل کی بنیاد پر اگر پورے بر صغیر میں کسی نے پیدا کی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ استعمار دشمنی، انسانیت پر استعمار کے مظالم، ماضی میں استعمار کے کالونیاں بنانا اور لوگوں کو کالونیوں کے ذریعے سے غلام بنانا، نوآبادیاتی نظام کی تاریخ، اس کے خلاف جنگ میرے تاریخ سے، میرے قربانیوں سے بری ہوئی ہے۔ تمہارے آباء و اجداد نے تو ان کے بوٹ چاٹے ہیں۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام زندہ باد! میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ فارن فنڈنگ تمہیں امریکہ سے ہوئی، فارن فنڈنگ تمہیں اسرائیل سے ہوئی، یہودی لابی سے ہوئی، فارن فنڈنگ تمہیں انڈیا سے ہوئی۔ غیر ملکی ہاتھ تو تمہارے پیچھے ہے، اور تم غیر ملکی طاقت کے اور غیر ملکی ہاتھوں کے ذریعے سے اقتدار میں آئے۔ آج تمہارے اقتدار کی کشتی جب ڈوب رہی ہے تو اب مقبول نعرے پاکستان میں اس کا سہارا لے رہے ہو۔ اب تمہارا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، اب تمہارا کردار لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، تمہارا جھوٹ بھی لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، تم نے جو خیانت کی ہے اس ملک میں وہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ آج آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ پاکستان پر مزید حکومت کرنے کی دعوے کر سکیں۔ عدم اعتماد کامیاب ہوگی انشاءاللہ، اور دھمکیاں مت دو کہ اگر ناکام ہو گئے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنے ہوئی، ہم بھی پھر آپ کے ساتھ وہ جنگ لڑیں گے کہ اب تمہاری نسل تو ہے نہیں کہ وہ یاد رکھے۔ قائد اشارہ کوا، قائد اشارہ کوا۔ تمہاری نسل تو یہودیوں کے گھر پل رہی ہے، لیکن تمہارے جو یوتھی ہیں انشاءاللہ یہ یاد رکھیں گے، ان کی نسلیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ تم نے ہمیں کبھی دیکھا نہیں ہے، اشرف غنی کا انجام دیکھو افغانستان میں، تمہارا انجام اس سے بھی کہیں برا کر کے انشاءاللہ۔ ہمیں مت چھیڑا کرو، ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی رویوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آج تم تقریر میں گالیں دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، الزامات لگاتے ہو، تہمتیں لگاتے ہو۔ تہمتیں لگا کر سیاست نہیں کی جاتی، حقائق سامنے لاؤ۔ میرے ساتھ میرے کردار کا مقابلہ کرنا ہے، میدان میں آؤ۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ 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 الحمدل
अपने बाप का मेरे बाप के साथ मुकाबला करना है, मैदान में आओ। माशाअल्लाह अपने दादा का मेरे दादा से मुकाबला करना है, मैदान में आओ। सुभान अल्लाह। और कितनी पुश्तों तक जाना चाहते हो? तुम्हारे आबा और अजदाद के किरदार को भी जानता हूँ और अपने आबा और अजदाद के किरदार को भी जानता हूँ, जिस पर मैं फख्र कर सकता हूँ। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मौलाना फजलुर रहमान साहब जिंदाबाद। आपने बैरूनी कुव्वतों के हुक्म पर पाकिस्तान में बजट बनाया। FATF बैरूनी इदारा जिसने आप पर दबाव डाला और आपने उनके कहने पर कानून साजियाँ की हैं। CPAC के कहने पर तुमने बजट बनाए, CPAC के मंसूबे को तुमने तबाह बर्बाद कर दिया। ये अमरीकी एजेंडा था, उसके लिए आपने काम किया, चीन को नाराज किया, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दूरी पैदा की। ये अमेरिका की पॉलिसी के तहत आपने किया है, कोई और इसका मुजरिम नहीं है। अब जाते हो तरले कर के 1 साल से कि मुझे ज़रा चीन तो आने दो, और जब वो आपको इजाज़त देते हैं तो चीन में बैठ कर भी वो आपके साथ बराह रास्त मुलाकात नहीं करते, वीडियो लिंक पर आपसे बात करते हैं और कहते हैं मैं चीन चला गया हूँ इसलिए अमेरिका नाराज़ है। अब कहते मैं रूस चला गया हूँ, बरकत वाले कद में लगी तो जंग छिड़ गई वहां पर। नहुसत की अलामत है और पाकिस्तान पर मुसल्लत है। और इस किस्म की गुफ्तगू एक गली कूचे का लुच्चा लफंगा कर सकता है, जो आजकल वो जलसों में कर रहा है हमारे खिलाफ। तुम्हारा किरदार क्या है? जिसको अपने किरदार पर न हया आए, न उस पर वो शर्मिंदा हो, वो इस किस्म की गुफ्तगू करता है और हमारा हाकिम है। हमने तो आज तक तुम्हारी ज़ात को छेड़ा नहीं है, वरना तुम्हारी ज़ात और ज़ाती किरदार की लॉस एंजल्स लेकर दी चौथ तक की बदबूदार और ताफुन किरदार का हमें पता नहीं है क्या? हम तुम्हें नहीं जानते, लेकिन हमें हया आती है कि तुम्हारे किरदार पर बात करें। और तुम एक साफ सुथरे और उजले किरदार पर गंदगी फेंकने की कोशिश कर रहे हो। एक ऐसा शख्स हमारे पाक दामनी को दागदार कर रहा है जिसका न अगला दामन है न पिछला दामन। अल्लाह अकबर। ये होते हैं लोगों के किरदार। कहते हैं मैं तो रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी शक्ल देखो, रियासत मदीना का तकद्दुस चिनिस्बत खाक रबा आलम पाक। तौहीन करते हो, तुम्हें खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ कहना नहीं आता, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना नहीं आता, रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बना रहे हो। क्या ड्रामे हैं जो तुम कर रहे हो? बेहयाई तुमने फैलाई, फहाशी तुमने फैलाई और नौजवान नस्ल को बेराह रवी और रियासत मदीना के अखलाक के बिल्कुल बरअक्स हयात ज़िंदगी उसके तौर तरीक़े तुमने बताए। तुमने तो अपनी कौम को मगरबी तहजीब का रास्ता बताया है, तुमने कब मदीने का रास्ता बताया है? तुम्हारे अपनी ज़ाती ज़िंदगी में रियासत मदीना का एक हर्फ मौजूद नहीं है। इस किस्म की हरकतें करते हो, इस किस्म की बातें करते हो और हमसे करते हो। हम इस मुल्क की सियासत को भी जानते हैं, हमने आमिरों के साथ भी लड़ाई लड़ी है, तो तुम क्या चीज़ हो? माशाअल्लाह। किस बाग की मूली हो? माशाअल्लाह। कोई हैसियत तुम्हारी नहीं। अब तुम हुक्मरान नहीं हो। हमने तो पहले दिन से आपकी हुकूमत नहीं मानी और अब आपके खिलाफ अदम एतमाद आ चुका है। इंशाअल्लाह। तुम्हारे अपने लोग भी अब हमारे साथ इंशाअल्लाह इस अदम एतमाद में साथ होंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो आजकल वो हमें दुनिया की सियासत तुमने इक़्तिदार में आने के लिए धांधली को प्लानिंग दी है और उस प्लानिंग से तुमने धांधली करके इक़्तिदार हासिल किया है। हम आज भी उस मौक़िफ़ पे कायम हैं और तुम आइंदा इलेक्शन के लिए भी धांधली का कानून पास करके
इक़्तिदार में दोबारा आने के तौर तरीके ढूंढ रहे हो। तुम्हारी फॉरेन फंडिंग अमेरिका में हुई है और मैं हैरान इस बात पर हूँ कि आखिर हमारा इलेक्शन कमीशन उस हवाले से फैसला करने में क्यों ताख़ीर कर रहा है। फिर कहता है मैंने अमेरिका को अड्डे देना, एब्सोल्युटली नॉट, इनकार कर दिया। तुमसे अड्डे मांगे कब हैं कि तुमने इनकार किया? झूठ बोलते हो लोगों के सामने। उस वक्त के ISI की चीफ ने जो सिक्योरिटी कमेटी को ब्रीफिंग दी है, उसने उस ब्रीफिंग में कहा है कि अमेरिका ने हमसे कोई अड्डे नहीं मांगे, और अगर उसने मांग लिए तो तू इनकार कर सकता है। तुमने सीपैक तबाह नहीं किया उसके कहने पे, तुमने मुल्क की तरक्की के तमाम मंसूबे नाकाम नहीं बनाए, तुमने मुल्क की तरक्की का सफर जाम नहीं किया। पाकिस्तान के साथ इससे बढ़कर और दुश्मनी नहीं हो सकती। तो अपनी हकीकत समझ लो कि रा और मूसाद के गठजोड़ से अमेरिका की सरपरस्ती में पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए लॉबी हुई और तुम्हें इक़्तिदार में लाया गया। आज बात करते हो हमारे साथ कि गैर मुल्क के लोग मुझे हटा रहे हैं। हाँ, तुम जिन्होंने तुम्हें गुलाम चुना था और तुम्हें अपनी गुलामी के लिए चुना था, तुम्हारा आका भी तुमसे मायूस हो गया है। तुम कितने नाअहल हो। कल्लुन अला मौला ऐन्नमा युवज्जिहु ला यअती बिखैर। कुरान करीम एक ऐसे गुलाम कि जो अपने आका पे बोझ बन जाए, कहता है जिधर जाता है खैर साथ नहीं लाता। ये उसका मिज़दाक है आज का। तो इस हवाले से हाँ, आपका अपना एडवाइज़र है और मोहिद यूसुफ साहब, उस एडवाइज़र ने कहा कि अमेरिका ने, जो अमेरिका से आया है, जो अमेरिका से आपने लाकर अपना मुशीर बनाया है, वो कहता है कि कोई अड्डे अमेरिका ने नहीं मांगे। तो आप कहां से बोल रहे हैं कि अमेरिका ने अड्डे मांगे और मैंने इनकार कर दिया? तुम्हारे औकात है कि तुम इनकार कर सको? बड़ी बड़ी बातें करना, ये वक्त गुजर चुका है तेरा। अब तुम बेनकाब हो चुके हो, अब तुम एक्सपोज हो चुके हो। अब दोबारा वो बातें न दोहराओ, वो दिन गुजर गए। आपने मईशत IMF के हाथ में दी, अपने मुल्क के स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी के नाम पर आपने उसको IMF के हवाले किया है। आज वो न हुकूमत को जवाब दे है, न काबीना को जवाब दे, न पार्लियामेंट को जवाब दे। अगर वो जवाब दे है तो IMF को जवाब दे। जुलाई 2019 से लेकर अब तक उसने आपको 1 रुपए का कर्जा नहीं दिया, और अब तो वो आज़ाद हो गया है, तो आपको देगा भी नहीं। दुनिया आपको कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है कि आप वापस नहीं कर सकते। ज़र मुबादला के ज़खायर में 1-1 रुपया कर्जे का है इस वक्त। अपने पाकिस्तान की कोई कमाई उसमें शामिल नहीं है। ये तुम्हारी हालत है, और इस हालत में तुम हमें गालियाँ देते हो। मुश्किल ये है कि हम शरीफ लोग हैं, हमारी ज़बान पर गाली आती नहीं, हमारी ज़बान पर गाली आती नहीं है। और पूरे मुल्क में हमारा कारकुन भी गाली नहीं दे रहा उनको, जवाब गाली में नहीं दे रहा उनको, क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी है और हम अपने मकाम से गिरने के लिए तैयार नहीं हैं। हम जिस मकाम पे हैं उसी मकाम पे रहना चाहते हैं। हम गिरते नहीं हैं, इक़्तिदार में हों या ना हों, लेकिन अपना जो एक मकाम हमें शरीयत ने बताया है और हक़ रास्ते के किरदार का एक मनहज हमें अता किया है, हम उस पर कायम हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, और उसी के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर जनाब लियाकत खटक साहब को और अब्दुल अहद खटक साहब को खुशामदीद कहता हूँ
और उनका शुक्रगुजार हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खड़े होके जी कर लें, आपके साथ आज शामिल हुए हैं। जी जी जी। आज ये यकजहती नहीं है। बहुत बड़ी जगह। सरबराह JUIF इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। फजलुर रहमान की जानिब से ये कहा गया कि लियाकत खटक और साहबजादे की पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम करता हूँ। इन पर अपने ही घर में कोई एतमाद नहीं। अंदाज़ा करें कि कौम का क्या हाल होगा। वज़ीर आज़म से कहता हूँ कि अदम एतमाद से निमट लूँगा। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये कहा गया, क्या वज़ीर आज़म के पास महंगाई और बेरोज़गारी से निमटने की सलाहियत है? क्या 1 करोड़ नौकरियाँ और 50 लाख घरों के वादे पूरे करने की सलाहियत है? अमरीका से वापसी पर जश्न मनाना उसके एजेंट होने की दलील है। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये कहा गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।